ایران جنگ ختم ہونے کے قریب، خطرے کو روکنے کے لیے مکمل فتح حاصل کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، دعویٰ کیا کہ ایران کی طویل عرصے تک ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، نیوی اور فضائیہ سمیت 51 جہاز بھی تباہ کر دیے۔ ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت 10% رہ گئی، زمینی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ناگواری کا اظہار، کہا مجتبی خامنائی کے انتخاب پر مایوسی ہوئی، اس سے ایران کی صورتحال ویسی ہی رہے گی۔ ہم ایران کا ایسا صدر چاہتے ہیں جو دنیا کے لیے اچھا ہو۔ واضح کیا کہ لڑکیوں کے اسکول پر حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے کچھ پابندیاں ختم کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے خلیجی ممالک کو اسمارٹ اور مضبوط قرار دیا۔ ایران سے متعلق امریکی صدر کی باتیں مضحکہ خیز، حملے جاری رہے تو خطے سے تیل برآمد نہیں ہونے دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا رد عمل، واضح کیا کہ جنگ کب بند ہوگی یہ اب ہم طے کریں گے، خطے میں سب محفوظ ہوں گے یا کوئی نہیں ہوگا۔ امریکہ نے افغانستان کو ناجائز گرفتاریاں کرنے والا ملک قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا افغانستان رجیم لوگوں کو ناجائز طور پر حراست میں رکھنے میں ملوث ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ، موجودہ عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق صدر پیوٹن نے تنازع کے حل کے لیے تجاویز امریکی صدر کو پیش کر دیں۔ ایران جنگ پر سفارتی محاذبی گرم، جنگ بندی کی کوششیں تیز، چین، روس اور فرانس کا ایران سے رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مذاکرات قبل از وقت قرار دے دیے، کہا امریکہ سے مذاکرات فی الحال ایران کے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ نائب وزیر خارجہ نے مذاکرات سے قبل جارحیت روکنی پڑے گی۔ ترک صدر کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، واضح کیا کہ ایران کو خطے کے ممالک پر حملوں سے باز رہنا چاہیے۔ ایرانی صدر نے ترکیے پر حملوں کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ آسٹریلیا کا مشرق وسطی میں دفاعی اقدام، جنگی بحری جہاز کی تعیناتی کا فیصلہ، یو اے ای کو درمیانے فاصلے کے ایئر ٹو ایئر میزائل فراہم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے کہا ایران کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کر رہے، تمام اقدامات دفاعی نوعیت کے ہیں۔ اور ممکن توانائی بحران سے نمٹنے کا مشن، وزیر اعظم سمیت حکومتی عہدیداروں کے بیرونی دوروں پر پابندی۔ بینکوں کے علاوہ تمام سرکاری دفاتر 4 دن کھلیں گے، تعلیمی اداروں میں 2 ہفتے کے لیے چھٹیاں۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان تنخواہ نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے۔ 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا۔ ہفتے میں 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ تمام اسکولوں کو 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی سے توانائی کا ممکنہ بحران، نمٹنے کے لیے وزیر اعظم کے بڑے اعلانات۔ وزیر اعظم سمیت تمام حکومتی اور سرکاری افسران کے بیرونی دوروں پر پابندی۔ بینکوں کے علاوہ تمام سرکاری دفاتر 4 دن کھلیں گے۔ تعلیمی اداروں میں 2 ہفتے کے لیے چھٹیاں۔ 2 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول میں 50% کمی۔ تمام محکموں کے 60% گاڑیاں بند۔ وفاقی کابینہ کے رکین 2 ماہ تک تنخواہ نہیں لیں گے۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ میں 25% کمی۔ گریڈ 20 کے اوپر کے افسران کی 2 دن کی تنخواہ عوام کے ریلیف پر خرچ ہوگی۔ سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیوں پر بھی مکمل پابندی عائد۔ سیمینار اور کانفرنسز ہوٹلز کی بجائے سرکاری مقامات پر منعقد ہوں گی۔ سرکاری اداروں میں 50% عملہ ورک فرام ہوم کرے گا۔ مفاد پرست عناصر، ذخیرہ اندوزوں اور پیٹرول اور ڈیزل کے ناجائز منافع خوروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال سے وہ ہرگز ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ذخیرہ اندوز اور ناجائز منافع خور صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائیں ورنہ سخت سزا ملے گی۔ وزیر اعظم کی 2 ٹوک وارننگ، کہا نازک موڑ پر پاکستان کو اتحاد، اخوت اور احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ باوقار قوم وہ ہوتی ہے جو مشکل گھڑی میں باہمی تعاون کے ساتھ آگے بڑھے۔
हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो तेल की कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। आइंदा चंद दिन में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी। इजाफा नागुज़ीर होगा। कोशिश होगी तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ अवाम पर ना पड़े। तेल और गैस की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं। मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम रखा जाएगा। अवाम पर बोझ ना पड़े इसलिए दरमियानी रास्ता निकाला। वक्त आ चुका कि अब अशराफिया आगे बढ़े। पाकिस्तान इस कशीदा सूरत हाल में हद्दुल मक़दूर कोशिश कर रहा है कि मामलात तदब्बर और सफारतकारी के जरिए हल हों। बरादर ममालिक की सलामती पाकिस्तानी सलामती का हिस्सा। मामला तदब्बर और सिफारतकारी के जरिए हल कराने के लिए कोशा है। वजीर आजम का कौम से खिताब। ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब, ओमान, कतर और दुबई में होने वाले हमलों पर भी इजहार तशवीश। आयतुल्लाह खामेनाई और ईरानी शहरियों की शहादत पर दुख का इजहार। कहा पाकिस्तान आजमाइश की घड़ी में बरादर ममालिक की शाना बशाना खड़ा है। हमें मगरबी सरहद से दहशतगर्दी का सामना है। दरअंदाजी पर बहादुर अफ़्फ़ाज़ सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में वतन की खुद मुख्तारी और शहरियों की जानो माल को यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास तवानाई की बचत के हवाले से जामे लाहे अमल पर गौर। सादगी और किफ़ायत शारी के हवाले से अहम फैसले किए गए। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। केपी की नुमाइंदगी मुशीर मुजम्मिल असलम ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। गैर मामूली सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इकदामात। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान के पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी। वज़रा आला सरकारी अफसरान की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। सूबे के तालीमी इदारे कल से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तवानाई की बचत के लिए केपी काबीना के बड़े फैसले। 2 माह के लिए फ्यूल बचत इकदामात नाफिज। सरकारी महकमों में मीटिंग 100% वर्चुअल करने का फैसला। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 25% कमी। सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी मुतारिफ। गैर जरूरी तकरीबात और सरकारी डिनर्स पर पाबंदी। जुमे के दिन तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़। बलूचिस्तान के तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ बंद। तेल की सप्लाई मुअत्तल। पूरी दुनिया में बहरान शदीद होने लगा। तेल की कीमत आसमान को छूने लगी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 1988 के बाद सबसे बड़ा इजाफा। निर्ख 30% बढ़ने के बाद $118 फी बैरल तक पहुंच गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $119 तक पहुंचने के बाद $110 के करीब ट्रेड। अमरीकी जाहरियत आलमी मईशत को ले डूबी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। तारीख की दूसरी बड़ी मंदी। 11,000 पॉइंट्स की कमी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भौचाल। कोरियन कंपोजिट प्राइस इंडेक्स 4 रोज में दूसरी बार क्रैश। 8% गिरावट के बाद कारोबार रोकना पड़ गया। जापानी स्टॉक मार्केट भी शदीद दबाव का शिकार। 6% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट 4, हांगकांग 3 और चीनी स्टॉक मार्केट 2% गिर गई। यूएई स्टॉक एक्सचेंज में भी 3.6% गिरावट। भारतीय स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। मुंबई स्टॉक में 3.16% कमी। अमेरिका और इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। 9वें रोज भी ईरान निशाना। ऑयल रिफाइनरी पर फिर बमबारी। शोले भड़कते रहे। कोहाग, शाहरान और कारान में भी ऑयल डिपोस तबाह। 6 अफराद शहीद। बंदर अब्बास में ईरानी बहरी जहाज पर भी मिसाइल दागे। इस्फहान, नजफाबाद, आरान और दीगर शहरों पर भी वहशियाना बमबारी। अब तक 1350 से ज्यादा अफराद जाबाहक हो चुके। ऑयल तनसीबात को निशाना बनाने पर अमेरिका और इसराइल में इख्तलाफात। इसराइल की लेबनान पर भी चढ़ाई। मजीद 16 अफराद शहीद। इसराइली फौज लेबनान में वाइट फास्फोरस इस्तेमाल कर रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच का इंकशाफ। ईरान का दुश्मन को पूरी ताकत से जवाब। इसराइल पर न्यू जनरेशन मिसाइल बरसा दिए। ऑपरेशन वादा सादिक की 32वीं लहर का आगाज। अल कदर और खुरम शहर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले।
क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल, 2 सेहूनी शहरी हलाक। सेंटकॉम का मजीद 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का एतराफ, तादाद 8 हो गई। खत्ते में अमेरिकी तंसीबात भी तेहरान का हदफ, दोहा में धमाके। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन पर हमलों में मुतादिद शहरी जख्मी, यूएई ने 12 मिसाइल और 17 ड्रोन मार गिराए। इराक के शहर मोसल में इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर फजाई हमला। इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां हजारों साल पुराने ताल्लुकात पर असर डाल सकती हैं। तुर्क सदर का ईरान को इंतबाह, कहा कशीदगी के खात्मे के लिए पहले दिन से ही सिफारती कोशिशों में मसरूफ हैं। तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के हामी हैं। वार्निंग्स के बावजूद इश्तियाल अंगेज इक़दामात कशीदगी में इजाफा कर सकते हैं। अमीर कुवैत ने पड़ोसी ममालिक पर हमले खित्ते की सलामती पर वार करार दे दिए। कहा हमारा वतन सुर्ख लकीर, किसी को मुल्की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ईरान ने मुश्तबा खामनाई को मुंतखब करके बहुत बड़ी गलती की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फैसले से नाखुश, कहते हैं नहीं मालूम मुश्तबा खामनाई ज्यादा देर चलेंगे या नहीं। ईरान के तेल पर कब्जे की बात करना कबल अज़ वक्त है, लेकिन खारिजी ज़मकान नहीं। रूसी सदर और हिजबुल्लाह के मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरान में स्कूल पर हमला अमेरिकी फौज नहीं किया। न्यूयॉर्क टाइम्स नए शवाहिद सामने ले आया। स्कूल के करीब अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल गिरने की नई वीडियो सामने आ गई। हमले में 175 अफराद जाबाहक हुए, ज्यादातर बच्चियां थीं। इलाकाई बहरी सलामती का बदलता माहौल और अहम समंदरी रास्तों में मुमकिन रुकावटें। पाक बहरिया का ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर शुरू। मकसद कौमी तवानाई की तरसील की बिला तात्तुल हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया के जहाज 2 तिजारती जहाज़ों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तान की 2 टोक तरतीब। अफगान वजारत दिफा का मैदान जंग में कामयाबी का दावा प्रोपेगेंडा करार। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं अफगानिस्तान में दुरुस्त इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। सिर्फ दहशतगर्दों के ढांचे और मुआविन निजाम हदफ है। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक भी कामयाबी से जारी। पख्तिका में शाहीन बेस के एम्यूनेशन डिपोस को तबाह कर दिया। शिवाल और जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका पोस्ट मलियामेट, खवारिज भागने पर मजबूर। हैदराबाद मोटरवे अगले 2-3 माह में हम उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। हमारा ये जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं कागान नरान की तरफ, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम मोटरवे जो है इसको लेके जाएंगे। अब हम एक रेस्क्यू सर्विस शुरू कर रहे हैं। किसी हादसे की सूरत में हेलीकॉप्टर के जरिए मरीज को फौरी तौर पे वहाँ से रेस्क्यू करेंगे। 2-3 माह में सक्कर हैदराबाद मोटरवे पर काम का आगाज, 2 साल में इफ्तिताह होगा। 1 साल में सियालकोट खारिया मोटरवे भी मुकम्मल होगी। बाबा गुरु नानक एक्सप्रेसवे का आगाज रवां साल ही किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने खुशखबरी सुना दी। मोटरवे को इस्लामाबाद रिंग रोड से मुंसलिक करने का ऐलान। मोटरवे को नारान, कागान, बाबूसर टॉप तक ले जाने का आज़म। तमाम मोटरवेज और हाईवेज पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विस शुरू करने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल अलीम खान ने कहा अफगानों को 40 साल मेहमान बनाए रखा। जिस मुल्क में परवरिश पाई उसी के खिलाफ बातें अफसोसनाक हैं। अफगानों को भारत इतना ही पसंद है तो वहां चले जाएं। ये परचम आन है अपनी, ये परचम शान है अपनी। परेड के मुआयने का आगाज हुआ। ट्रेनिंग कॉलेज का परेड ग्राउंड इस वक्त एक दीदाज़ेब नज़ारा पेश कर रहा है। शेखुपुरा ट्रेनिंग कॉलेज में हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की पासिंग आउट परेड। वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए। आईजी मोटरवे ने यादगारी शील्ड और स्वीनियर पेश किया। नया फॉर्मेट, नई आजमाइश, शाहीन नए मिशन के लिए तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज का कल से आगाज। ग्रीन शर्ट्स का फोटोशूट, खूब पोज बनाए। शेर बंगला स्टेडियम में तवील ट्रेनिंग सेशन। हेड कोच ने सीरीज नौजवान खिलाड़ियों के लिए चैलेंज करार दे दी। बाबर आजम से मुतालिक सवाल पर कहा किसी को खास तौर पर ड्रॉप नहीं किया। रमज़ान अल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। इफ्तार का समा में आज एतकाफ की फजीलत पर रोशनी डाली गई।
بنو سما کی آواز میں 3 نعت خوانوں میں مقابلہ ہوا۔